Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss the kinetics of chain reaction. Okay. So in the earlier video and the previous session we are briefly talking about the kinetics of chain reaction, but we are just going to cover the simple reaction mechanism. So in the today's session basically we are first of all talking about the major key point of this chain reaction. जैसे कि मैंने previous video में discuss किया था, while you are talking about the any chemical chain reaction, the chain reaction will be further split into mainly two parts. एक होता है आपका stationary chain reaction, whereas another one will be a simple reaction mechanism. तो सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात की है. सो इन द टुडेज सेशन वी आर ब्रीफली टॉकिंग अबाउट दी व्हाट इज द स्टेशनरी चेन रिएक्शन. ओके, so now without wasting our timing we are going to be started to solve that what is the stationary chain reaction. Okay, so now when we are going to be consider the any actually stationary chain reaction, okay, first of all you just need to understand that the each and every chain reaction will be carried out the sum of the elementary step they must have to follow. जिसमें हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन मीन्स चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड चेन प्रोपोगेशन स्टेप, थर्ड chain inhibition step, and fourth will be the chain termination step. So by looking into these actually four elementary step we are going to be complete the reaction. So now हम लोग यहाँ पे study कर रहे हैं kinetics, so definitely the rate law and the rate equation come into the picture. Now how we are going to be derive the kinetics of this chain reaction. So the example for this actually stationary chain reaction will be the reaction between hydrogen and bromine. So this actually reaction hydrogen and bromine will be very famous actually chemical chain reaction. So the very first your task will be you have to what propose the mechanism for this particular chemical reaction इन द फोर एलिमेंट्री स्टेप. तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, तो सबसे पहले रिएक्शन को हम लोग इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे जनरली हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. सो इनिशिएशन में क्या होगा दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी रिएक्टिंग इटसेल्फ एंड यू विल गेट द योर प्रोडक्ट. सो Br2 पहले रिएक्ट होगा, यू विल गेट द 2Br एज अ प्रोडक्ट. सो दिस इज योर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, वी कैन कॉल्ड इट एज अ इनिशिएशन. ठीक है, तो जिसमें हमें क्या मिलेगा K1 विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन. अब प्रोपोगेशन का मतलब यहाँ पे होता है आपका रिएक्शन विल बी एग्जैक्टली स्टार्ट. तो आउट ऑफ दिस एक्चुअली 2 moles ऑफ द ब्रोमीन, वन मोल ऑफ द Br विल बी रिएक्टिंग विद द another reactant will be the H2 and you will get the product HBr and the H will be the eliminate. तो ये यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिला. सो दिस द K2 will be the rate constant. Then further this HBr, okay, not I am going to be consider but the one H I am going to be consider over here along with the again reacting with the Br2 you will get the HBr plus Br. So this is how the you will talking about the chain propagation step over here. Then inhibition में हम लोग क्या करेंगे, we have to what prevent and stop the chemical reaction so that this HBr now again reacting with the 1 mole of the H and you will get the product H2 plus Br, and again this okay bromine will be reacting with the another bromine and you will get finally Br2. So this will be the finally termination, मतलब यहाँ पे पूरा आपका chemical reaction stop होता है. So this is how now looking at this particular reaction, अगर मैंने सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया, सो यू विल गेट ओवर हियर दैट H2 प्लस Br2 2HBr and remaining the terms will be definitely cancel each out when we are going to be invoke the all the 5 equations together. So this is how this will be the your proposed mechanism. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द काइनेटिक्स. ठीक है, तो काइनेटिक्स सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यू फर्स्ट हैव टू कंसीडर द रेट लॉ एंड द रेट इक्वेशन ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होने हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr. तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr विच इज गिवन बाय DHBr विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं हमेशा. सो DHBr अपॉन DT. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि HBr जो है वो पहले कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और जो भी हम लोग फॉर्म करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है वहां पर हम लोग हमेशा प्लस साइन डालते हैं, और जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा उसका मतलब वो डिसअपियर हो रहा है. तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इन द प्रपोज मैकेनिज्म यू हैव टू लुक इनटू इट कि HBr फॉर्म कहाँ पे हो रहा है. तो आप अगर देखोगे HBr 2 में फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, देन
3 केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो प्लस आएगा, और HBr कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, रिएक्शन 4 में, तो रिएक्शन में 4 में वो नेगेटिव साइन आएगा। तो वैसे आप लिख लीजिए पहले तो, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दिस यू हैव टू राइट डाउन द रेट इक्वेशन, रेट लॉ लिखो। तो क्या होगा, 2 केमिकल, तो क्या बनेगा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br एंड H2 प्लस 3 में क्या आएगा K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H एंड Br2 माइनस रेट इक्वेशन 4 तो आएगा माइनस K4 concentration of H and concentration of HBr. So you will get here equation number 1. ठीक है ना। आफ्टर राइटिंग डाउन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस कंप्लीट इक्वेशन, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट फ्रॉम द प्रपोज मैकेनिज्म। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है और फर्दर केमिकल नेक्स्ट केमिकल स्टेप में जाके वो वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो आप अगर देखोगे HBr के अलावा यहाँ पे H और Br यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप में वो कंज्यूम भी हो रहा है। सो द H एंड Br विल बी द व्हाट, इंटरमीडिएट फॉर दिस एक्चुअली chemical reaction. So these are the actually intermediate. So for the concentration of Br and concentration of hydrogen, you just need to apply over here what, steady state approximation. जैसे मैंने बताया था कि steady state approximation हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जहां पर आपका intermediate form होता है in the chemical reaction which disappear very quickly and you will get the further product. तो उसे ही हम लोग यहाँ पे steady state approximation देते हैं. So now by applying the steady state approximation to the intermediate H and the Br, you will get over here now dH upon dt. अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन जो है, H जो है यहाँ पर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले ढूंढो इन द 5 केमिकल रिएक्शन H कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 2 फॉर्म हो रहा है, देन कहाँ पे हो रहा है, इन द 4th फॉर्म नहीं हो रहा है बिकॉज ये H2 है, हमें सिर्फ H को देखना है। तो मतलब 2 में यहाँ पर सिर्फ फॉर्म हो रहा है। अब कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, देखो 3 एंड 4 में H एंड H, तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, तो वो होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे पहले आपने सर्च कर लिया, अब हम लोग राइटिंग करते। तो केमिकल इक्वेशन 2 में देखो क्या होगा, रेट इक्वेशन K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br एंड H2 लिखा मैंने। अब सेकेंड माइनस साइन डालना है, 3 इक्वेशन लिखो, K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 राइट, माइनस 4 केमिकल इक्वेशन लिखना है, रेट K4 concentration of H and concentration of HBr. ठीक है, so this is how you will get now here equation number 2. I hope so you should completely understand this equation. Now after writing this, अब हमें क्या लिखना है, similarly for Br we have to write down. अब यहाँ पे देखो, so that's why now d Br upon dt. अब Br आपको सबसे पहले क्या करना है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है देखो। अब Br देखो केमिकल 1 में फॉर्म हो रहा है बराबर, तो हम लोग लिखेंगे 1 में फॉर्म हो रहा है। फिर Br कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 3 में फॉर्म हो रहा है, प्लस यहाँ पर आएगा फिर, और Br कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 4 में, तो प्लस आएगा। अब कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है वो देखो, Br कंज्यूम हो रहा है 2 में, तो -2 यहाँ पर आएगा, और Br कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है 5 में, तो -5 आएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे डिसअपियर हो रहा है Br केमिकल रिएक्शन 2 और 5 में, वैसे 1, 3, 4 में वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसका अभी रेट कैसे लिखोगे देखो, K1 है बट यहाँ पे 2 मोल्स में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे राइट डाउन कैसे करूँ रेट लॉ dBr/dt के लिए। देखो इक्वेशन 1 में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है, Br 2 बार, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। अब 3 में भी फॉर्म हो रहा है Br, तो क्या होगा, प्लस K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। अब 4 में भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस K4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr। अब 2 और 5 में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो 2 में देखो यहाँ पर है ना Br, मतलब डिसअपियर हो रहा है, तो क्या होगा, K2 नेगेटिव साइन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br एंड H2। फिर 5 में भी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 Br है, कंज्यूम हो रहा है, तो क्या होगा, -2K5। अब Br 2 है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, 2K5 एंड Br, अब 2 मोल्स है तो Br का यहाँ पे आएगा स्क्वायर। ठीक है, -2K5 Br2। तो दिस इज हाउ यू विल गेट नाउ इक्वेशन नंबर 3। Now after getting the what your
DH अपॉन DT यू हैव टू अप्लाई द व्हाट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो ये इज इक्वल टू होगा 0, ये भी इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। अब आप यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2, दीज आर द इक्वेशन नंबर 3। अगर हम लोगों ने ऐड कर लिया तो ये नेगेटिव ये प्लस, तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, K2 प्लस है ये यहाँ पर नेगेटिव, तो ये होगा इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्या, अभी ये पूरा इक्वेशन, ये होल इक्वेशन कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ 2K1 BR2 माइनस 2K5 BR स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय एडिंग द इक्वेशन 2 and 3 सिमिलर टर्म हम लोगों ने कैंसिल किए, तो सिर्फ बचा क्या, ये वाला इक्वेशन। ना आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन फर्दर हम लोग अब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BR हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोगों ने, अब क्या किया यहाँ पर, मान लीजिए 2K1 है, यहाँ पर है BR2, ये अगर माइनस इज इक्वल टू इस साइड आए तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 2K5 क्या बनेगा BR स्क्वायर, 2 गेट कैंसिल। तो अब यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या चाहिए BR, तो यहाँ पर क्या होगा K1, ये K5 यहाँ पर आया तो क्या होगा, डिवाइड होगा, देन ये BR2 ऐसा रहेगा, और ये जो 2 है इज इक्वल टू के साइड आएगा तो ये क्या बनेगा हाफ। सो दिस इज हाउ नाउ यू विल गेट द हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BR। नाउ वंस यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BR, आपको क्या करना है, द फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H भी तो निकालना है बराबर। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 आपके पास ये है, अगर मैंने यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैरिड आउट किया था, तो मान लीजिए अब हाइड्रोजन हमें चाहिए, H को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो अगर मैंने इज इक्वल टू के साइड ये दोनों इक्वेशन में लेकर गई तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, जस्ट चेक आउट। सो K2 BR H2 इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ पर आएंगे इज इक्वल टू के साइन, तो क्या मिलेगा K3H BR2 प्लस K4H एंड HBr। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, तो दोनों में से मैंने क्या निकाला, कॉमन H निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट, K3 BR2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा K4 HBr। ठीक है, तो H मैंने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा K2 BR H2 ऐसा रहेगा, और ये होल टर्म यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड आएगा, तो क्या मिला मुझे K3 BR2 K4 HBr। समझा, तो मैंने अब क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 आई एम जस्ट गोइंग टू बी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट नाउ इक्वेशन नंबर 5। तो आपको अभी यहाँ पर देख लीजिए, concentration of BR also you will get and concentration of H also you will get. So now once you are going to be solve the intermediate concentration BR and H, now in order to determine the rate formation for your product DHBr DT, अब हम लोग क्या करेंगे, the equation number 4 and this equation number what you are 5 we are going to be what, अब इक्वेशन जो 4 है, जो BR हमें मिला वो हम लोग किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट यूर हाइड्रोजन जो है इसमें डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट टेक आउट लुक। अब K2 यहाँ पर है, H2 मैंने साइड में लिया, अब BR का जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकाला था ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। सो जस्ट टेक अ लुक, K2 मैंने लिखा, H2 ये पहले मैंने साइड में लिखा, एंड द होल टर्म आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग डाउन एज सच। अब सिर्फ BR का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोगों ने निकाला था इक्वेशन नंबर 4, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डाल दिया, that K1 upon K5 BR2 and half. So this is how you will get the equation number 6। मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर exactly concentration of H। अब आपको क्या करना है, the equation number this 6 and the equation number 4 मतलब concentration of BR and the concentration of hydrogen, ठीक है, that you will add into the equation number 1। तो इक्वेशन नंबर क्या है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मतलब DHBr DT। अब ये थोड़ा सा टीडियस है, वाइल यू आर गोइंग टू बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 and 6 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या कर लीजिए, ये 3 इक्वेशन से अब इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BR, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, ये तीनों वैल्यू आपको डालना है, रिमेनिंग एज सच टर्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो जस्ट एक लुक, मैंने इसके लिए डिफरेंट कलर पेन से लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली सॉल्व कर सके आप। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, DHBr DT मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखो क्या है, K2 एज सच लिखा, H2 मैंने पहले ही लिखा। अब BR का कॉन्सेंट्रेशन डालना है, BR का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, K1 अपॉन K5 BR2 हाफ, ठीक है,
तो मतलब पहला मैंने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड क्या है, K3Br2H का कॉन्सेंट्रेशन डालना है। तो सबसे पहले क्या करो, K3Br2 को लिखो यहाँ पर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, देखो द होल। तो ये पूरा इक्वेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप सो यू विल गेट। अब थर्ड क्या है यहाँ पर, -K4HBr, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डालना है। तो क्या करो, K4HBr यहाँ पर लिख दो। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, मतलब ये वाला वैल्यू, ये यहाँ पर मैंने पूरा डाल दिया। ठीक है, तो आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे पुट करना है। सिर्फ आपको अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन जो है यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर डालनी है। ठीक है, नाउ वंस यू आर गोइंग टू बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, फर्दर हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व नाउ दिस इक्वेशन ओवर हियर, जस्ट टेक अ लुक। अब आप अगर देखोगे इन द होल इक्वेशन जो हमें यहाँ पर मिला, इसमें क्या है, K2H2 K1/K5Br2 हाफ, ये जो टर्म है, ये वाला होल टर्म, ये सब में कॉमन है। देखो यहाँ पर भी है K2H2 K1/K5 हाफ Br2 हाफ, ये यहाँ पर भी है इक्वेशन नंबर 2 में। और आप अगर इक्वेशन 3 में देखोगे तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। सो ना आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दिस टर्म एज अ कॉमन। तो मैंने ये यहाँ पर कॉमन निकाला, तो सिर्फ बचेगा क्या, अब ये क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस होगा। अब इसमें सिर्फ क्या बचेगा, देखो 1 प्लस K3Br2, देन ये बिलो जो है K3Br2 K4HBr एज सच रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, K4HBr K3Br2 K4HBr। ठीक है, तो इतना ही इक्वेशन हमें मिला। अब फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सो नाउ वंस यू विल गेट, अब ये इक्वेशन है एज सच आपको यहाँ पर लिखना है। अब फर्दर हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस है। अगर मैंने पूरे इक्वेशन को मुझे इक्वेट करना है विद दिस एक्चुअली इक्वेशन, तो मुझे ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी ऐड K3Br2 प्लस K4HBr अबाव। तो ये और ये कैंसिल हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 बराबर। सो मैंने क्या कर लिया, सबको इक्वेट कर लिया और ये सबको एक ही साथ लिखा, दैट K3Br2 K4HBr, बिकॉज ये दोनों में कॉमन। तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, देखो K3Br2 K4HBr प्लस K3Br2 माइनस K4HBr। आई होप से स्टेप आपको समझ में आया कैसे लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर जो टर्म है मैंने कैंसिल कर दी, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये और ये टर्म कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग अब यहाँ पे क्या बचा, दैट DHBr/dt, K2H2 ये पूरा होल टर्म हम लोगों ने एज सच लिखा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, देखो K3Br2, यहाँ पर भी है K3Br2, प्लस साइन है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2K3Br2, डिवाइड क्या है K3Br2 K4HBr। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिलने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है K3Br2 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में भी है और अपर साइड में भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, K3Br2 से हम लोग होल टर्म को क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे होल टर्म को डिवाइड करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने इससे डिवाइड कर दिया। अब देख लो यहाँ पर मैंने निकाला K3Br2, यहाँ पर भी मैंने डिवाइड किया K3Br2, यहाँ पर भी मैंने डिवाइड किया K3Br2 और इसको भी मैंने डिवाइड किया K3। तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर K3Br2 गेट कैंसिल, ये यहाँ पर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचेगा ना, ये तो इक्वेशन कैंसिल होता है ये क्योंकि एक साथ ही है ना, मतलब तो सिर्फ बचेगा क्या, 2K2H2 K1/K5 हाफ एंड Br2 हाफ। तो इतना ही इक्वेशन बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ये पूरा कैंसिल हुआ K3Br2, तो इसके लिए यहाँ पर आया 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा K4/K3, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr डिवाइडेड बाय Br2। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने डिवाइड किया। सो ना आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो टर्म है, सो दीज आर द होल कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर और ये वाला पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ K डैश और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे K डबल डैश। सो यू विल गेट हियर फाइनल इक्वेशन दैट K डैश इज इक्वल टू Br2 हाफ एंड H2, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस और इसको हम लोग लिखेंगे K डबल डैश HBr/Br2। सो दिस इज हाउ फाइनली यू विल गेट द DHBr/dt वैल्यू एज अ 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है K डैश की वैल्यू क्या है एंड K डबल डैश क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। Once you will get the equation number 7, as you can start with the actually hydrogen and bromine reaction, you should aware about that. In the initial stage,
when you are starting with the reaction, the concentration of HBr is going to be very very small, means completely negligibly क्या था, small था. So that's why the denominator जो term है K double dash HBr upon Br2, that is going to be considered as what, 1 over here. तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी द 1. सो दैट्स वाई D with respect to time HBr concentration is equal to, यहाँ पर फिर क्या बचेगा, सिर्फ K dash Br2 half and the H2, and this is how for the what formation of HBr you will get the rate equation that K dash Br2 half and H2. That means the order of the reaction will be what here, 1.5. ये है, ठीक है. So this is how you are going to be solve the complete what reaction mechanism and kinetics. So I hope so student you should completely get the answer that how you are going to be solve the what your stationary chain reaction mechanism for hydrogen and bromine. ठीक है. But still student, if you have any doubt regarding this mechanism part, so definitely you should ask me the question. I definitely resolve your all the problems. Okay. So once again student, thank you so much watching this video, and if you really like this video, so don't forget to subscribe us. Okay. So once again, thanks a lot.